Everything goes back to one question. Why have you come here? ये जो साधना है इसमें क्या लिखा है? भगवान के महाविष्णु के जितने भी अवतार हुए धरती पे, तो जैसे जैसे उनका जीवन चला, it was not very dissimilar to our lives. So if you look at the life of Lord Krishna as a small child, stealing butter, crawling underground, he was sheer delight, absolute delight. Can there be any difference between, for God, between a man and a woman? कि क्या गोपियों का प्रेम ही भगवान के लिए सर्वोत्तम था? भगवान ने कभी प्रहार किया, कभी संहार किया, कभी रन छोड़ा, which is what, if you see in your lives, we have to do. There's some battles we pick, some things we have to let go. We have to live in a family, we have to live in a workplace, we have to do so many things. जब तक हम इस साधना के पथ में, भक्ति के पथ में मक्खन की तरह पिघलेंगे नहीं, जब तक चाइल्ड लाइक नहीं बनेंगे भगवान की तरह, भोले नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे भगवान को मन में या हृदय में बिठा पाएंगे? अगर आप पिघल जाएंगे तो आप भगवान में रच जाएंगे. So I don't know you and you don't know me, which is good in a way. जब कोई हमारे घर आता है तो उसको मिलना भी होता है, थोड़ा सा उसका मन भी लगाना होता है. So in a way, for me personally, you have come to my home, and now I have to I will not use the word entertain, but I have to मुझे आपका थोड़ा मन लगाना होगा. तो ट्रिक्स तो बहुत है मेरे पास, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आपका मन लगाने के लिए. But everything goes back to one question. Why have you come here? Because I just wanted to gauge what has brought you here. So obviously, Lord Krishna has brought you here and his bhakti. Because up till now, most of the people who have always come to the ashram are a mix of, let's say, people who have been coming for a very, very long time because of Swamiji, our Guru Maharaj. तो तब से वो स्वामी जी को जानते हैं, पहचानते हैं. आई ऑल्सो काइंड ऑफ आई एम एज ओल्ड एज श्री हरि हियर. जब भगवान का विग्रह आया था तो तब से, इसलिए यू नो मोस्ट ऑफ द फेसेस, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल. सो न्यू पीपल, lovely people, and I'm sure we'll get to know each other, and especially if you keep coming back. So I'm going to do the Guru Stuti now, and after that we'll slowly dip into this ocean of devotion. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है मेरे गुरु को, जो साक्षात नारायण और माँ जगदम्बा है. तत्पश्चात मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उन दिव्य शक्ति को, जिनकी प्रेरणा से आप सब यहाँ एकत्रित हैं. भगवान के महाविष्णु के जितने भी अवतार हुए धरती पे, तो जैसे जैसे उनका जीवन चला, it was not very dissimilar to our lives. जब हम छोटे थे तो
हमारे सोच का दायरा भी उतना ही था। एज़ वी केप्ट ग्रोइंग, हम टीन्स में आए, फिर 20s में, फिर 30s में, एंड व्हाटएवर इज़ आवर करंट एज, वी मैच्योर्ड, we adapted, we learned. So, if you look at the life of Lord Krishna as a small child, stealing butter, crawling on the ground, he was sheer delight, absolute delight. And then as a teen, there he was, so powerful, slaying demons, stealing the heart of the gopis and the gopas. Can there be any difference between, for God, between a man and a woman? Is a question to ponder. कि क्या गोपियों का प्रेम ही भगवान के लिए सर्वोत्तम था? The gopas or the men loved him deeply. For when you are in love with God, it's the soul. एक वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है. I don't want to use this cliche कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको क्या पता. ये जो spirit है, it is without a body. All the constructs that we imagined ourselves with, it's man, woman, all those desires, that shape only this birth has given us. So as a teen, Bhagwan was very powerful and just, going about being playful and being this great playboy. And then as years passed by, तो भगवान राजा बने, द्वारकाधीश बने, तो जो युद्ध के बादल थे, सर पे हमेशा मंडराते ही रहे. भगवान ने कभी प्रहार किया, कभी संहार किया, कभी रन छोड़ा. तो इस समाज में एज एन एडल्ट भगवान भी एक नीति से चले, which is what, if you see in your lives, we have to do. There's some battles we pick, some things we have to let go. We have to live in a family, we have to live in a workplace, we have to do so many things. तो भगवान हमेशा, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया. जेंटली, धीरे धीरे बस मार्गदर्शन करते रहे. He was never meddling. He allowed the human will to prevail. So if you see this theme, तो भगवान भी एक तरीके से, as I would say, mature होते रहे. पुरुषोत्तम तो वो सदा ही थे, but for him also he kept gearing towards, it's not right to say his highest self, he is the highest self, but if you get my drift. तो जो स्वामी जी हैं, तो गुरु महाराज से ये कई सालों पहले जब भक्ति पे बात हो रही थी, तब मैंने ये सुना था. उन्होंने कहा कि जो भगवान का मक्खन खाना है, वो भी बहुत ही, उसमें एक बहुत ही स्पिरिचुअल विजडम और एक मिस्ट्री है. तो जब भगवान छोटे थे और मक्खन खाते थे, और कैसे सबके जो हैं हृदय जो हैं बिल्कुल पिघल जाते थे. तो स्वामी जी ने कहा जो भगवान का मक्खन खाना है वो सत्व गुण का प्रतीक है. क्योंकि जब जो मक्खन होता है, जब वो पिघलता है, तो वो कैसे हाथों में, शरीर में रच सा जाता है. तो जब तक हम इस साधना के पथ में, भक्ति के पथ में मक्खन की तरह पिघलेंगे नहीं, जब तक चाइल्ड लाइक नहीं बनेंगे, भगवान की तरह भोले नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे भगवान को मन में या हृदय में बिठा पाएंगे. तो भगवान का मक्खन खाना जो है, सत्व गुण का प्रतीक है.
अब जब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान ने मक्खन छोड़ के बांसुरी उठा ली। और ये तो सभी जानते हैं कि बांसुरी जब खाली हो गई तो उसमें से ध्वनि निकलने लगी। तो स्वामी ने कहा कि अगर हम खाली हो जाएंगे तो भी हम भी भगवान के समीप जा सकते हैं। पर ये रजस गुण का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बांसुरी के बजने से या एक आनंद की अनुभूति होती है। तो अगर हमने ये भी कर लिया कि हम खाली हो गए, हमने समर्पण कर दिया, तो हम भगवान के समीप हो जाएंगे। अब जब भगवान और बड़े हुए हैं तो उन्होंने बांसुरी छोड़ी। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। क्योंकि जो मनुष्य की विद्या है वो चक्र से ही कट सकते हैं। और जब चक्र चलेगा तो पीड़ा तो होगी। एंड विच इज सच अ डीप लाइन कि जब चक्र चलेगा तो पीड़ा तो होगी। इफ फॉर अ मोमेंट वी एग्जामिन आवर लाइव्स, everybody is in some kind of pain, physical, mental, emotional, imaginary. Even I have it. इसके लिए मेरे पास कुछ है। एंड आई थॉट दिस वाज वेरी वेरी डीप। ये ये वाली जो स्टेज है भगवान की लाइफ की, वो एक हमारा तमोगुण का प्रतीक है। तो भगवान ने चक्र उठा लिया। ऑब्वियसली गिवन द थ्री ऑप्शंस, हम सत्गुण ही चाहेंगे। विच मीन्स हमें क्या करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर तो बांसुरी बन गए तो भगवान के समीप हो गए। तमोगुण में यही होगा, भगवान ने चक्र चलाया, वृत्तियां टूटेंगी तो भी भगवान के पास जाएंगे। बट द बेस्ट इज कि हमें पिघलना है, हमें मक्खन बनना है। क्योंकि हम अगर पिघलेंगे, विच मीन्स अगर आपने देखा होगा जब आप अपनी पूजा करते हैं, एंड आई नो ये रोज नहीं होता होगा फॉर मोस्ट पीपल, बट जब भी कभी एक्चुअली भगवान के साथ वो टांका लगता है, रेयर होता है पर होता है, what happens to you? And it is also my personal experience. The heart just melts. Something inside of you is just, I don't know what happens to you. You are like a child. You are broken, but you are whole. And you are so okay with everything. People can hate you, people can ignore you, your whole world can come crashing on you. But in that moment, because you're so connected, you have actually just become like a puddle. सो मक्खन बनना है। ये गुरु महाराज कहते हैं कि मक्खन बनना है, पिघल जाना है। क्योंकि उससे क्या होगा, हम भगवान में ही रच जाएंगे। अगर आप पिघल जाएंगे तो आप भगवान में रच जाएंगे। सो भागवत पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है कि ये कोई हत्यारा ही होगा जो भगवान की जो जीवन की कहानियां हैं वो सुनने से अपने आप को रोक पाएगा। वो भगवान, वो श्री कृष्ण जिनके जिनका जो जीवन है, उसकी जो महिमा है, उसकी गाथाएं ऋषि मुनि सदा सदा से गाते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि और इसलिए नहीं गा रहे, दिस इज व्हाट आई फाउंड ब्यूटीफुल, कि इसलिए नहीं गा रहे क्योंकि वो कहानियां आनंद देती हैं। इसलिए गा रहे हैं क्योंकि जो ये संसार रूपी रोग है, इसका इलाज और इसका मरहम सिर्फ भगवान है। भागवत पुराण is my go-to and I quite love it, and it's very very beautiful. So another one, because अभी हम भगवान के बहुत छोटे बालपन की ही बात कर रहे हैं, तो भागवत में लिखा है कि भगवान ने माँ यशोदा को ये अनुमति दे के कि आप मुझे बांध सकती हैं, ये इस चीज का प्रमाण दिया, और दैट इट्स सिंबॉलिक, दैट जो भक्त है वो भगवान के ऊपर
सदा ही विजय पा सकता है, क्योंकि एक भक्त को ही ये अनुमति है कि वो भगवान को अपने प्रेम में बांध सकता है।